In our last previous class, we have studied about the projectile motion. Okay. In today's class, we will see some of the cases which are on the basis of that projectile motion. Okay. आज हम यहाँ पे थोड़े सम ऑफ द केसेस देखेंगे, 4-5 केसेस यहाँ पे। वो जो केसेस यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर ही यहाँ पे डिपेंडेंट है। ये जो केसेस हम यहाँ पे 1 by 1 स्टडी करेंगे। ये जो केसेस के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे मेन एग्जाम के अंदर यहाँ पे 5 मार्क्स से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा। केसेस यहाँ पे आप लोग थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट से यहाँ पे सुनो, ओके, सुन के यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करो, ओके। सी हियर फर्स्ट वन, दैट इज मैक्सिमम हाइट, ओके। This is nothing but maximum height which is represented by symbol capital H. Okay, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बॉडी को हम यहाँ पे स्पेस के अंदर ऐसे थ्रो कर रहे हैं। तो थ्रो करने पर यहाँ पे कितना वेलोसिटी से हम इनिशियल वेलोसिटी थ्रो कर रहे हैं। जब इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो हुआ तो यहाँ पे क्या होएगा, एक बॉडी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट तक रीच होता। जब मैक्सिमम हाइट रीच होने के बाद वहां पर उसका जो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। तो वहां पे उसका जो वेलोसिटी जीरो हुआ तो वहां पे क्या होगा, पार्टिकल यहाँ पे मैक्सिमम हाइट मींस हमने यहाँ पे पार्टिकल ये पॉइंट तक यहाँ पे अब दिस इज नथिंग बट फ्रॉम ग्राउंड से यहाँ पे देखे तो ये पार्टिकल कैसे है, मैक्सिमम हाइट के पास है। तो कितना हाइट गया पार्टिकल वो हमारे पास क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। सी हियर the point displacement from the ground, the point which is displacement from the ground is nothing but maximum height, okay। देखिए यहाँ पे let capital H be the maximum height, okay। For vertical motion is nothing but along y-axis. We know that along y-axis that is initial velocity is there. That initial velocity is nothing but u sin theta. Then acceleration is there. That is acceleration is equal to minus g. Acceleration due to gravity is nothing but again minus g. Then distance is there. S is equal to nothing but distance becomes height. S is equal to h. Then the formula that is, and here the final velocity, that is v is equal to 0. Okay. Then v square is equal to u square plus 2as is the formula. We are taking this formula instead of those two formula, that is v is equal to u plus at, again s is equal to ub plus half at square. We are not taking this one and this one also. Okay, these two are not considering because we don't know the time. Okay. If you know the time, then we are using these two formula, but we don't know the time. That's why we are using these two formula, and we are taking only the formula which is not included in time. Okay. You see here, v square is nothing but 0. 0 as it is. In u square, the value of u is nothing but u sin theta. That is u square sin theta. Then a becomes minus g. That is plus g is nothing but minus 2 as it is. Then a is nothing but g. And s become h. We have to calculate the value of h. Then this is nothing but 2gh, which is equal to u square sin square theta, or h is equal to u square sin square theta divided by 2g. This is nothing but maximum height which the particle do while we are throwing it as a projectile motion. Okay. See here, the second case is nothing but time of ascent. The time of ascent is nothing but, it means that the time taken by the projectile to reach the maximum height. Okay. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे रीच कर रहा है। ये जो मैक्सिमम हाइट रीच करने वास्ते जो कितना टाइम लग रहा उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे, ओके। टाइम को हम यहाँ पे स्मॉल टी से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट ए इंडिकेट्स टाइम ऑफ एसेंट, ओके। दिस ए इज नथिंग बट टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो डेफिनेशन क्या हो रहा है, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, to reach the maximum height
एसेंट मॉलिक्यूल, उसको हम यहाँ पे कौन से सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, टीए सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। चलिए मैक्सिमम हाइट यहाँ पे हुआ बोले तो अलोंग कौन सा डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, अलोंग वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल। ऑब्वियसली यहाँ पे कहां पे हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस में, बट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आपका जो है मैक्सिमम हाइट हो रहा है। इसी नदी पर मैक्सिमम हाइट कहां पे, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे फॉर वर्टिकल मोशन, सेम यहाँ पे फॉर वर्टिकल मोशन क्या मालूम है अपने को, u इज इक्वल टू u sin थीटा एंड v इज इक्वल टू 0, ओके, देन a इज इक्वल टू माइनस g है यहाँ पे, सही है, देन t becomes ta, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। अब यहाँ पे ऐसा जो फॉर्मूला ले लो, वहां पे इसके अंदर आपको क्या लेना, इनिशियल वेलोसिटी लेना, फाइनल वेलोसिटी लेना एंड टाइम इंटरवल लेना एंड एक्सेलरेशन लेना, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s का वैल्यू नेसेसरी नहीं है। तो हम लोग को दो फार्मूला मालूम है, s ut + cos v², वहां पे s है बट यहाँ पे s मैटर करेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं करे, तो s इज नथिंग बट यहाँ पे s का वो जो फार्मूला लेना नेसेसरी नहीं है। देन अरे फार्मूला आपने को यहाँ पे v² + 2s, here also s is there, but we don't need the value of s, so here also we have calculation that v² = u² + 2s. Instead of these two formula we are taking, that is v is equal to u plus at, okay. From the formula which formula we are taking, that is v is equal to u plus at we are taking. We have to calculate the ta, okay. We know the value of v is nothing but 0, then u is nothing but u sin theta, okay, then a is nothing but minus g and t becomes ta. This is nothing but g of ta is equal to u sin theta and this ta is equal to u sin theta divided by g. This is nothing but time of ascent. ये जो टाइम ऑफ ascent के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा, जो बॉडी मैक्सिमम हाइट यहाँ पे रीच कर रहा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट केस है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहाँ पे कैपिटल T सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देन टाइम ऑफ फ्लाइट, द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट दैट टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिमेन्स इन द एयर, ओके। देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्या करें, एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे थ्रो करें, स्पेस के अंदर थ्रो करें, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा हो रहा है, स्पेस के अंदर यहाँ पे 2 डायमेंशन के अंदर यहाँ पे मोशन होके मैक्सिमम हाइट रीच हुआ। जब मैक्सिमम हाइट रीच होने के बाद फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर यहाँ पे कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट ऐसे मैक्सिमम हाइट होने के बाद वहां पे क्या हो रहा है, एक फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर यहाँ पे एयर में रहेगा। वो जो कितना है फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के वास्ते यहाँ पे कितना टाइम ऑफ फ्लाइट हो रहा है, उसको हमें कैलकुलेट करना है। समझ रहे आप, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट थ्रो करे मैक्सिमम हाइट रीच हुआ, तो मैक्सिमम हाइट रीच होने के बाद यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, यहाँ पे कहां पे, ये जो एयर के अंदर ही है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये जो एयर के अंदर आप यहाँ पे कितना टाइम है, यहाँ पे जो कितना टाइम से यहाँ पे ऑब्जेक्ट एयर के अंदर है, उसको ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। The time taken by the projectile to remains in the air, जो एयर के अंदर पार्टिकल रहेगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। अब एयर के अंदर आप बोलते हैं यहाँ पे अलोंग कौन सा डायरेक्शन के अंदर है, अलोंग वाई एक्सिस के अंदर ही है यहाँ पे पार्टिकल वेक्टर, तो इसीलिए अभी भी यहाँ पे क्या लेना, फॉर वर्टिकल मोशन का ही यहाँ पे वैल्यूज लेना। फॉर वर्टिकल मोशन u is equal to u sin theta, a is equal to minus g, b is equal to 0, okay, then small t is equal to capital T, and
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, तो इसलिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट में हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, s इज इक्वल टू 0. देन s इज इक्वल टू 0 रहा, अब एक कौन सा फार्मूला यूज करना हम, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम द फार्मूला, it is s is equal to ub plus half at square फार्मूला यूज करेंगे. ओके, s is equal to ub plus half at square फार्मूला. ओके, देखिए यहाँ पे s का वैल्यू क्या है, 0 है, then u is nothing but u sin theta into small t becomes capital T minus half this a becomes g and t small t square becomes capital T square. This is nothing but half g t square is equal to u sin theta into t. 1 t and this 1 t get cancelled. Then what remains? It is half gt is equal to u sin theta और t is equal to यहाँ पे डिवाइड है, LHS क्वांटिटी में आया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2u sin theta डिवाइड बाय g. दिस t is nothing but 2u sin theta डिवाइडेड बाय g. ओके, इतना टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्टाइल हो रहा. ओके, उतना समय तक यहाँ पे क्या हो रहा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक एयर के अंदर है. ओके, फोर्थ केस इट इज हॉरिजॉन्टल रेंज. ओके, हॉरिजॉन्टल मतलब आपको कहां पे जाना, प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा, उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज. ओके, इट इज नथिंग बट यहाँ पे देखिए इनिशियल पॉइंट दैट इज O है, वहां से लेके यहाँ तक दिस इज नथिंग बट r को ले रहे, तो r इंडिकेशन यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट maximum displacement covered by the projectile in the horizontal direction is called horizontal range. बोल के लिखेंगे, इसका एक फार्मूला है, that is range is equal to velocity of horizontal component into time of flight ओके, देखिए आप रेंज को r से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर वेलोसिटी कौन सा है, यहाँ पे u cos theta is the velocity which is moving towards the x direction, that is u cos theta. then time of flight फाइंड आउट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2u sin theta divided by g. दिस इज नथिंग बट 2u sin theta divided by g था. यहाँ पे लास्ट केस फाइंड आउट करें ना, टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर दैट इज t is equal to u sin theta, मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे u into u is nothing but u square and 2 sin theta into cos theta divided by g. 2 sin theta into cos theta divided by g. We know that from trigonometry formula sin 2 theta can be written as 2 sin theta into cos theta. Okay, wherever sin 2 theta into cos theta is there, then we can write it as sin 2 theta from the trigonometry formula. Okay, then this becomes u square by g into sin 2 theta. This is what range is equal to r is equal to u square by g sin 2 theta. Okay. In sometimes the situations come where in the numerical problem where they ask the maximum range. Okay, for a maximum range
consider it as a fifth case. It is maximum range. Okay, this maximum range can be written as R max. Okay, that is R max is nothing but maximum range is nothing but formula is there. It is u squared by g sin 2 theta. Okay, then theta becomes maximum when sin 2 theta is nothing but maximum value is nothing but 1. When the sin 1 will be when the theta is 90 degree. That is 2 theta is equal to 90 degree. That is sin 2 theta is equal to 1. When the value of 1 become when sin 90 is nothing but 1, then theta is equal to 90 divided by 2. This is theta is equal to 45 degree. Okay, when theta becomes 45 angle means जब हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को 45 एंगल से हम क्या करेंगे थ्रो करेंगे तो वहां पे क्या रहेगा ये जो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर होएगा अराउंड विच डायरेक्शन अराउंड एक्स एक्सिस के अंदर आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर होगा. ओके, तो रेंज बिकम्स r max when r max is equal to u square divided by g. अगर से आपसे पूछा मैक्सिमम रेंज पूछा हो तो ओनली यू हैव टू यूज दिस फार्मूला दैट इज r max is equal to u square by g because when theta is nothing but 45 degree angle. Okay, and theta is nothing but 45 degree angle. I hope आप लोगों को जो ये केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इजीली अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा बोल के मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करूँ. ओके, थैंक यू वेरी मच.